નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. સરકારની પીછેહઠ હવે શું? 12 વર્ષથી એક જ પાર્ટીની સરકાર છે દેશમાં અને એ સરકાર સામે પહેલું મોટું આંદોલન થયું કિસાન આંદોલન. 500થી 700 કિસાનોના મોત થયા. છતાં પણ કૃષિ મંત્રીનું રાજીનામું ન લેવાયું અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય મિશ્રા ટેની કે જેના પુત્રએ પોતાની ગાડીથી ખેડૂતોને કચડ્યા, એનું પણ રાજીનામું ન લેવાયું. પરંતુ એક વખત અથવા તો પહેલી વખત એવી ઘટના બની છે કે યુવાઓ સામે સરકાર ઝૂકી છે. સરકાર કોઈ પણ હોય, આંદોલન થતા રહે અને જવાબદેહી નક્કી કરવા માટે આંદોલન હતું. ન માત્ર યુવાઓ પરંતુ જે અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં અલગ અલગ મુદ્દાઓને લઈને સરકારથી નારાજ છે, જે અડધા દેખાઈ રહ્યા છે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન છે, હવેથી કદાચ આમ તો નય જ દેખાય શિક્ષણ મંત્રી તરીકે, કેમ કે જે એક માંગ હતી અને એ માંગ પર અડગ હતા યુવાઓ, સીજેપી અને વિપક્ષ પણ, કે શિક્ષણ મંત્રી જવાબદેહી નક્કી કરી રાજીનામું આપે. ગઈકાલે જ્યારે સમાચાર મળ્યા કે એનટીએમાં 47 અધિકારીઓને હાંકી કઢાયા, એમની જવાબદારી નક્કી કરવાની વાત હતી, જવાબદેહીની વાત હતી. એ જવાબદારી પર આજે જે ઘટનાઓ બની, કેમ કે છેલ્લા 24 કલાકમાં, માત્ર 24 કલાકના ગાળામાં પીએમ મોદી 2 વખત ફ્રન્ટ કેમેરાથી અડધી રાત્રે લોકોને સંદેશ આપતા જોવા મળ્યા. કહ્યું કે જે યુવાઓ ન માત્ર જંતર મંતર પર, એ યુવાઓ પુણે હોય, મહારાષ્ટ્રનું કોઈ પણ શહેર હોય કે પછી પશ્ચિમ બંગાળ હોય, દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં જ્યારે યુવાઓ રસ્તા પર આવે છે તો સરકાર ભીંસમાં મુકાઈ છે. સંસદને ઘેરવાનો કોલ 20 તારીખે હતો, એ પછી લાઠીચાર્જ થયો, ટીયર ગેસના શેલ પણ છોડ્યા, પેલેટ ગનથી એક વિદ્યાર્થીએ આંખ પણ ગુમાવી. એ વિદ્યાર્થીઓ કે જેને પેપર લીકના કારણે પોતાનો જીવ આપ્યો, એના પરિવાર પર શું વીતી રહી છે, સરકાર અત્યાર સુધી માત્ર આશ્વાસન આપી રહી હતી. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું તો એમને કહ્યું પણ ખરા કે સહાનુભૂતિ છે અને દેશ વિરોધી તાકાતો હાવી ન થાય એનું અમે ધ્યાન રાખીશું. સવાલ એ પણ છે કે જે નેરેટિવ બનાવાય છે કોઈ પણ આંદોલનમાં દેશ વિરોધી તાકાતોનો હાથ હોય છે, શું વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા એ વાતની ખરાઈ કરશે અથવા તો સરકાર જો ખરાઈ કરી ચૂકી હોય તો કોઈ પણ પુરાવા આવ્યા છે? આજે દ્રશ્યો છે, કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ જેપી નડ્ડા સાથે સીજેપીના જે બે પ્રવક્તા છે મળવા ગયા. 20 તારીખથી અત્યાર સુધીમાં ત્રીજી વખત આ મુલાકાત છે અને એ પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ છે. તેમાં જાહેર કરાઈ છે કે સરકારે એમને બાંહેધરી આપી છે કે જે એફઆઈઆર થઈ છે વિદ્યાર્થીઓ પર, એ પરત ખેંચાઈ જશે. આગામી સમયમાં કોઈ એક્શન નહીં થાય, એ આશ્વાસન, સહમતિ મળી હોવાનું સીજેપીએ કહ્યું. અને સૌથી મોટી વાત, સોનમ વાંગચુકને જે લેખિતમાં અડધી રાત્રે જઈને ઉપવાસ તોડાવાયા હતા, એ જે લેખિતમાં અપાયું હતું, તેમાં જે મૃતક વિદ્યાર્થીઓ છે નીટ પેપર લીક પછી, તેમને કમ્પન્સેશન આપવાની વાત સરકારે લેખિતમાં આપી. એ કમ્પન્સેશન કેટલું આપશે એ ત્યારે નક્કી ન થયું. અને આજે પણ જેપી નડ્ડાએ કહ્યું કે નિયમ અનુસાર અમે વળતર આપીશું. માત્ર મુદ્દો વળતરનો નથી, જે રીતે લાઠીઓ ચાલી છે અથવા વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે બર્બરતા થઈ છે, મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટ, દિલ્હી હાઈકોર્ટ સુધી પણ પહોંચ્યો અને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે અત્યારે અમને વિડીયો જોવામાં રસ નથી. આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, કાનૂની પ્રક્રિયા. પણ કોકરોચ શબ્દનો ઉપયોગ દેશની સૌથી મોટી કાયદા વ્યવસ્થા જે સંભાળવાનું કામ છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જ્યારે ઉલ્લેખિત થયો અને એ બાદ રાતોરાત એક સીજેપી બને છે, કોકરોચ જનતા પાર્ટી, અને એ પછી લોકો રસ્તા પર આવે છે, લોકો જોડાય છે. પહેલી વખત થયું કે લીડર ઓફ ઓપોઝિશન લોકસભા વિરોધ પક્ષના નેતાની ટીંગાટોળી થઈ હોય તો સરકાર ખરેખર શું ભીંસમાં હતી અથવા તો એ પરિસ્થિતિમાં આવી ગઈ છે. રાજકીય પાર્ટીઓ રાજકીય જમીન બનાવશે અને લાભ લેશે, પણ જે મુદ્દો છે એ મુદ્દો શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો છે. સરકારે બાંહેધરી તો આપી છે, પણ હવેથી શું દરેક વિભાગોમાં, એ E20 હોય કે પછી રોડની વ્યવસ્થા હોય, શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ શું હવે જવાબદેહી નક્કી થશે? એક નવો ચીલો ચાતર્યો હશે અને આ આંદોલન ઘણી રીતે મહત્વનું છે. પહેલા જોઈએ કે સીજેપીના જે બંને પ્રતિનિધિઓ છે એ મળ્યા, બાદમાં કઈ રીતે એમને જેપી નડ્ડાએ પણ વાત કરી અને સાથે સાથે તેમને જાહેરાત કરી કે હવે અમે અપીલ કરીએ છીએ કે લોકો વિખેરાઈ જાય, આંદોલનની અમે સમાપ્તિ કરીએ છીએ. પહેલા બંને તરફ સાંભળી લઈએ જેપી નડ્ડાએ શું કહ્યું અને सीजेपी प्रवक्ताए शू कही. जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी. जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था. एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे
जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं। केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं, और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। से नहीं जाएंगे कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। તો ઘણી બધી વસ્તુઓથી વરિષ્ઠ પત્રકાર અને ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં એડિટર ઇન ચીફ રહેલા અજય શુક્લ આપણી સાથે જોડાશે, કેમ કે સતત એની નજર છે અને આ મુદ્દા ઉપર સતત તેઓ બોલતા રહ્યા છે। એ જોડાય એ પહેલાં આ આક્રોશ એટલા માટે ઉઠ્યો કેમ કે કદાચ ઘણા બધા એક્સપર્ટ્સ અથવા તો આઈએએસ આઈપીએસ ઓફિસર જે ભૂતકાળમાં આટલા ઉચ્ચ પદ પર રહી ચૂક્યા છે, તેમનું એક એ માનવું હતું કે સરકારને એમ હતું કે 10,000ની આસપાસ આ પ્રોટેસ્ટનો જે કોલ અપાયો છે એમાં કદાચ લોકો આવશે, પરંતુ ભીડ 50,000થી વધુ આવી, એટલા માટે જ ઘણી જગ્યાએ મેટ્રો સ્ટેશન બંધ કરી દેવા, ઘણા દિવસોથી ઘણા બધા મેટ્રો સ્ટેશન જે આંદોલનના રૂટ અથવા તો જંતર મંતરની આસપાસ જે છે તેમાં બંધ કરી દેવાયા। બાદમાં લાઠીઓ તો ચાલી જ હતી, પરંતુ જે ફૂડ ડિલિવરી થઈ હતી તેને પણ રોકવામાં આવ્યા। સાથે જે લાઠીઓ સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે જે હરકત થઈ છે, આ બધા જ પૂરી સુરક્ષામાં ઘણી જગ્યાએ આરએએફ પોલીસથી માંડીને ઘણા ઓફ ડ્રેસમાં, સાદા ડ્રેસમાં, જ્યાં પોલીસ અધિકારીઓ આરએએફના જે રેપિડ એક્શન ફોર્સ જે છે તેના જવાનો નેમ બેજ વગર જોવા મળ્યા। ત્યારે પણ મીડિયાએ સવાલ કર્યો કે અમે વિશ્વાસ કઈ રીતે કરીએ કે તમે આરએએફ અથવા તો દિલ્હી પોલીસમાંથી છો। તો આ એક ટાઈમલાઈન રહી છે અને પહેલી વખત 20 તારીખે જ્યારે સીજેપીના બંને પ્રવક્તાઓ ગયા ત્યારે 2 કલાક રાહ જોવડાવવામાં આવી, તેમને ઓફિશિયલ પોસ્ટ કરી અને બાદમાં મર્યા। બોલાવાયા અથવા તો મરવા ગયા તે આજે પણ સવાલ છે। રાજકીય રીતે આવનાર સમયમાં ઘણી બધી અપ્સ એન્ડ ડાઉન વચ્ચે રાહુલ ગાંધી પણ રિએક્શન આપવા આવ્યા છે। ગઈકાલે જ્યારે એક પેલેટ ગનથી એક યુવાએ પોતાની આંખ ગુમાવી હતી, તેમને સાથે રાખીને જે કાર્યવાહી થઈ તેના પર ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા અને એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરી હતી કે કઈ રીતે જે લોકો પાસે પૈસા છે એ સિસ્ટમની નીચેથી આટલી મોટી એક્ઝામ્સમાં પૈસા ખર્ચીને પાસ થાય છે। इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है
जो सिचुएशन है उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। ओके, प्लीज प्लीज। અજય શુક્લ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે તો સ્ક્રીન પર લાવો। અત્યારે અજયજી, आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। राहुल जी की भी आवाज, राहुल गांधी की आवाज भी आप तक पहुंची होगी। मतलब आज जो हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उसने शायद दिया नहीं, और इन सब के बीच में अगर जवाबदेही तय करने की बात हो तो आज क्या सरकार पीछे हटी? एक किसान आंदोलन था और एक युवाओं का आंदोलन है, और राहुल गांधी अब भी कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस ने जो कार्यवाही की उसको सजा मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से देख रहे हो आप सर ये पूरा 1 महीना जो चला और पिछले 3 दिन से जो घटनाक्रम हुआ, आने वाले वक्त में इसकी क्या असर दिखने को मिलेगी? देखिए, आपसे बात करने के लिए मैं धरना स्थल पे, चूंकि इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है और काफी प्रॉब्लम है वहां, तो इसलिए मैं निकल के दूसरी जगह आया हूं। वहां से आपसे बात कर रहा हूं जहां से इंटरनेट मिला है मोबाइल से। जी सर। तो गाड़ी से बैठ के इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जो हालात है वो हालात इस तरह से हैं कि बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, इस तरीके से उन्हें ब्रूटली मारा गया है कि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि वो दर्द देखते नहीं बन रहा है, उनके घाव देखते नहीं बन रहे हैं, चोट देखते नहीं बन रही। पहले गन से जिस तरीके से मारा है वो चोट है। आज ये स्थिति है, जो बच्ची थी उससे मिलने नहीं दे रहे हैं जिसे पहले उससे मारा है, इसी तरीके से और कई लोगों से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये हालत इन्होंने कर दी है। आप बच्चे मांग क्या रहे थे? बच्चों की गलती नहीं थी, बच्चों ने पैसा दिया था, तैयारी की थी, एग्जामिनेशन दिया था। आपने एग्जाम चोरी किया, आपने पेपर चोरी किया, और एक बार होता तो कहते चलिए गलती हो गई। लगातार हो रही है, हर साल हो रही है। 2024 में जब इन्होंने नीट पेपर की ये हुआ, पेपर लीक हुआ, उस समय भी राहुल गांधी लड़े, कांग्रेस लड़ी, एनएसयूआई लड़ी, यूथ कांग्रेस लड़ी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम कानून बना रहे हैं। 2024 में कानून लेकर के आए, नोटिफाई हो गया, उसके बावजूद आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनी, आज तक कार्रवाई के लिए नहीं हुआ है, आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। और जो 2024 के नीट पेपर लीक का मेन कल्प्रिट था, वो संजीव मुखिया को उसी दिन बरी कर दिया जाता है
जिस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, तो आप सोचिए इनका दोहरा चरित्र वहीं नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इनकी सहयोगी पार्टी से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, इसलिए उसे बचाया गया है। तो यह स्थिति है, धर्मेंद्र प्रधान को कब तक बचाएंगे? 152 पेपर्स लीक हुए, बच्चों के भविष्य बर्बाद हुए, जीवन बर्बाद हुआ है। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, लंबी लड़ी जा रही है। लेकिन अच्छा हुआ, इतने समय से जो यूथ जाग नहीं रहा था, आज वो जागा, वो सड़क पर आया, और इसके लिए उस युवा को धन्यवाद है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें जो महान बात है वो ये है कि आंदोलन यूं नहीं खत्म होने की स्थिति वाला है, क्योंकि अभी भी जो दो चीजें हैं, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने जिस तरीके से निहत्थे बच्चों को मारा, जिस तरीके से उन निहत्थे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, जिस तरीके से लड़कियों की छातियां दबाई और जिस तरीके से उनके साथ में मोलेस्ट किया, जो जो किए हैं वो कुकर्म है। यदि आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा पाप है वो पाप इन्होंने किए हैं, और ये वर्दीधारी गुंडों ने किए हैं, गैर वर्दीधारी गुंडों ने किए हैं, जिन पर सुरक्षा का भार था। उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के संरक्षण में हुआ है। ऐसी स्थिति में उन दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, जिससे संदेश जाए कि जो ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी उन बच्चों से माफी मांगे कि मैं उस गलती के लिए माफी मांगता हूं कि मैं आपको एक सुरक्षित सिस्टम नहीं दे सका, एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है कि यह बताया जाए कि किस तरह से आपने तमाम सारी चीजें बिल्कुल कोलैप्स कर दी है, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो जब यह सब कुछ है सामने, तो स्वाभाविक सी बात है कि लड़ाई यूं नहीं, राहुल गांधी के साथ उस पूरे आंदोलन की जो मुख्य कर्ता धर्ता थी, वो तीनों चारों लड़कियां और लड़के खड़े थे। वो थे जिन्होंने पूरे 23 दिन तक जंतर मंतर पे अनशन किया है, सबसे पहले शुरू किया था। सोनम वांगचुक तो बाद में अनशन करने शुरू हुए, वो लड़कियां पहले शुरू हुई। और सबसे पहले जंतर मंतर में जब अभिजीत दीप पहुंचा था, तो वही लड़कियां, वही नेहा वोरा के नेतृत्व में, जेएनयू के उन बच्चों के नेतृत्व में, डीयू के बच्चों के नेतृत्व में, एनएसयूआई के बच्चे, और ये सब जा करके इन्होंने समर्थन दिया था, इन्होंने किया था। जो एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा था, वो पहुंचा था नीरज अपनी पूरी टीम के साथ में। ये सब पहुंचे थे और इन्होंने उस आंदोलन को वो किया था। आज जब इस तरह से समझौता कराने और सब कुछ करने का होता है, तो जब तक सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, तब तक ये निश्चित रूप से आंदोलन पूर्ण नहीं है। अभी तो एक मांग की पूरी हुई है, पहले बाकी पर भी कार्रवाई हो तब बात है। ये असल में नरेंद्र मोदी ने तमाम खेल खेले थे अभिजीत दीपके के जरिए और सोनम वांगचुक के जरिए कि इसको जो है अपने हाथ में ले लिया जाएगा। और जो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, ये और आयशा, ये सारे जो पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, वो बिखर जाएगा। लेकिन इन बच्चों ने जाके उस आंदोलन को भी संभाल लिया, इन्हीं बच्चों ने। और देश के तमाम वो माँ बाप भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा, बगैर किसी डर के भेजा। तमाम वो भी बच्चे बधाई के पात्र हैं कि यूनिवर्सिटी की तमाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन्होंने जारी किया कि आप यदि वहां गए तो आप पे कार्रवाई होगी। उसके बावजूद बच्चे गए कि चाहे जो कोई बोले, हम लड़ेंगे, कहेंगे। यह था पूरे देश में जिस तरह से खड़ा हुआ है। ये सिर्फ जंतर मंतर की लड़ाई होती तो नरेंद्र मोदी जीत जाते। ये लड़ाई पूरे देश में खड़ी हो गई थी। आपके गुजरात में भी कहीं कहीं बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट हुआ है, मुंबई में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, पुणे में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, कलकत्ता में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, लखनऊ में हुआ है, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद है। सर, मैं यही बात कर रहा हूं कि पूरे देश में ये आग फैली, स्टूडेंट्स, और न मात्र स्टूडेंट्स जो भी सिस्टम या सरकारों से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं किसी भी सरकार में,
वो रास्ते पर आते हैं, क्योंकि हमें पिछले फिर से वो पीछे वाले वक्त में जाना पड़ेगा कि इश्यूज तो काफ़ी सारे थे, लेकिन एक हॉस्टल के मेस का बिल बढ़ गया, वो जाते जाते जेपी मूवमेंट में तब्दील हो गया वो चीज़, और बाद में सरकार गिर गई। लेकिन वो जो एक आईना होता है या फिर एक रवायत होती है ना कि ये सब कुछ तो होता रहता है, हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, तो ये इस्तीफे का मतलब क्या है, इससे मैसेज किया जाएगा जनता में जवाबदेही के लिए। और दूसरी समझने वाली बात, आने वाले वक्त में यही चीज क्या सरकार को सता रही थी कि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और दिलवा दिया तो आने वाले वक्त में कुछ और सवाल भी खड़े हो सकते हैं। तो क्या सरकार में अभी हाल क्या चल रहा है पिछले 2 दिनों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार आधी रात युवाओं को संबोधित करने आ चुके हैं, तो अंदर क्या चल रहा है, मतलब वो डर क्या वो दिख रहा है पहली बार 12 सालों में? प्रवीण जी, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान जिस तरह की स्थितियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ये आ रही है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि नरेंद्र मोदी और उनके लोग जो कल कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हो, धर्मेंद्र प्रधान बोले कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, वही आज इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको यदि एक कहानी बड़ी अच्छी सी है जो लिखा था गोरखनाथ पांडे ने, उन्होंने लिखी थी पंक्तियां कि वो डरता है, उसके पास सेना है, गोला बारूद है, सब कुछ है, लेकिन वो डरता है। इस बात से डरता है कि किसी दिन गरीब, निहत्थे लोग, मजबूर लोग, मजलूम खड़े हो जाएंगे और डरना बंद कर देंगे। जी हां, वो डरना बंद कर दिया, इसलिए वो डर गया है, क्योंकि अभी तक डर का शासन स्थापित कर रखा था। आपके यहां वो मुख्यमंत्री था तब डर का शासन स्थापित किया था, जब देश का प्रधानमंत्री बना तो देश में डर का स्थापित किया। कभी ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, पुलिस के नाम पे और तमाम तरह से अत्याचार के नाम पे, लिंचिंग के नाम पे, हमलों के नाम पे तमाम तरह का डर पैदा किया गया। इतना डर पैदा कर दिया गया कि लोग बोलने से डरने लगे, घबराने लगे, सच नहीं बोल पाते थे। बोलने के लिए कहते थे नहीं आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वैसे करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरह से लोगों का डर देखा मैंने, अपने तमाम दोस्त आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का डर देखा। नहीं अजय भाई, मैं आपको इस तरह से कॉल करता हूं। अब आप एक चीज सोचिए, ये जो डर था, इन बच्चों ने वो डर तोड़ दिया है। आप याद करिए 2022 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, एक ही चीज का नारा दिया था, न डरो न डराओ, और वो नारा इतना बुलंद होता गया, धीरे धीरे लोगों ने डरना कम किया। लेकिन इन बच्चों ने जो काम किया, उसने सबसे बड़ी बात करी, उसने पूरा डर खत्म कर दिया। ये तो वही चीज हो गई ना, जो मतलब लाठियां पड़ रही थी, बिना डरे वो लाठियां खा रहे थे, आओ मुझे मारो, वो डर निकल गया था। शायद वो मैसेज सरकार में गया, इसलिए वहां पर डर बन गया, इसलिए पूरी व्यवस्था थोड़ी बदली पिछले 4-5 दिनों में। नहीं, इसके अलावा देखिए प्रवीण जी, सबसे बड़ी बात ये बच्चे जो नारे लगा रहे थे, हम आप बोलने में हिचकते हैं जो बात, लड़कियां वो सैनिटरी पैड लेके आ रही थी और बोल रही थी। अब तो हमारा महामारी के समय में ये नहीं लीक होता है, मोदी का सिस्टम लीक हो रहा है, परीक्षा लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। संभालिए मोदी जी, अपने मुंह पे लगा लीजिए। आप सोचिए, बच्चे इस तरह से कह रहे थे, बच्चे उन्हें कायर भी कह रहे थे, बच्चे उन्हें जिस तरह के कह रहे थे वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं चैनल पे। इसने डर खत्म किया है कि अब आप कुछ भी बोल सकते हैं, और जब बोलना शुरू किया बच्चों ने, तो सरकार का बिल्कुल डर खत्म हो गया। और वो डर खत्म होने का ही जो चाह रहे थे राहुल गांधी बड़े समय से, कि देश में डर का माहौल खत्म हो, तभी इस देश के लोग निकलेंगे और बोल पाएंगे। तो आज ये स्थिति है कि आज वो डर का माहौल खत्म होने से लोग अब आ रहे हैं, खुल के निकले, लोगों ने अपने बच्चों को भेजा, और बच्चे कहने लगे कि आंसू गैस, अरे आंसू गैस छोड़िए ना, थोड़ा सा हम भी देखें, उसका मजा ले, लाठी मारिए ना, और मारिए, रुके मैं खड़ा हूं। लड़कियां आप देखिए फूल बांट रही थी उन पुलिस वालों को, उन सुरक्षा बल के लोगों को, लीजिए लीजिए, आप अपने बच्चों पे बड़े अच्छे से लाठी चला रहे थे।
थक गए होंगे, लीजिए फूल लीजिए, दिल से दे रहे हैं। आप देखिए कैसे शर्मिंदा किया है, ये डर को खत्म करता है। बच्चे कह रहे थे अरे गर्मी लग रही, वाटर कैनन छोड़िए, वाटर कैनन छोड़िए। मतलब आप ये सोचिए, क्यों? क्योंकि आपने पैलेट गन भी यूज कर ली, आपने वाटर कैनन यूज कर लिया, आपने लाठियों में कीले लगा के आपने मारा, बच्चों को बुरी तरीके से घायल किया। आपने तो यह किया कि जिससे बच्चे मर जाएं, कितनों की आंखें खराब हो गई हैं। और इस सब के बाद तो बच्चों का जज्बा निश्चित रूप से बढ़ना था, और वही बड़ा। आपने इंटरनेट काट दिया, आपने वहां जाने के रास्ते बंद कर दिए, और उसके बाद भी बच्चे पैदल चल के दूसरे तरीके से पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया। और उनके लिए देश भर से कोई जोमेटो से, कोई किसी से उनके लिए खाना भेज रहा था, कुछ और भेज रहा था। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं भेज रहा था, जो लेना चाहे उसको दे देना। पुलिस वाले भी छीन छीन के उससे खा रहे थे। अब आज सोचिए, जब ये देश का जज्बा जाग जाए, देश जाग जाए, डरना छोड़ दे, तो नरेंद्र मोदी का डरना स्वाभाविक है। ओके। तो राहुल गांधी ने एक समय में कहा था सरेंडर मोदी, आज सरेंडर मोदी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जिस तरह से वो कांपता हुआ, डरता हुआ दिखाई दिया 2 दिनों में, आप ये देख लीजिए। जिस तरह से संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस कभी इस तरह के से नहीं नारे लगाती थी कि मोदी चोर है, मोदी साहब चोर है, इसके नारे कांग्रेस ने लगाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 85 साल के वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। प्रवीण जी, पूरे देश में यह स्थिति है। बच्चे कह रहे थे, जिद कर रहे थे, नहीं हमें भी ले चलो। मुझे मेरी बेटी का फोन आया, पापा मैं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ, थोड़ा अपने को केयर करना। और उसके बाद में वो और उसकी एक दोस्त जो तमिलनाडु से है, वो वहां गए। उसको हिंदी नहीं आती है उसकी दोस्त को, तो उसको वो बताती है और उसके बाद में ले गई सारी चीजें, और पैदल चले 10 किलोमीटर वो लोग। ये सोचिए, इसी तरीके से और तमाम सारे लोगों की मैं देख रहा हूं। तो ये स्थिति, मेरी छोटी बेटी जो 14 साल की है, वो गई कि नहीं मैं भी जाऊंगी। नहीं, वही तो चीज़ है, शायद वही असर कर गया। वक्त की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन आपने जो अपने आंखों देखा हाल सुनाया, और इंटरनेट का और कनेक्टिविटी का इश्यू है, आप भी फेस कर रहे हैं, इसलिए आप थोड़े लेट से जुड़ पाए। लेकिन सही बात है, किसी ने सही कहा है कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाती है। और ये शायद अजय जी सभी सरकारों के लिए है, और उनसे बिल्कुल उल्टा जो हुआ दिल्ली या जंतर मंतर पे, तमाम प्रयास रोकने के बावजूद शायद उसके कारण ही आज ऐसी चीज हुई कि 12 साल में किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, जिसके ऊपर अड़ गए थे युवा। आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये जवाबदेही वाला सिस्टम बदलेगा या फिर रवायत वही रहेगी जो चली आ रही है। धन्यवाद अजय जी जुड़ने के लिए, काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप जुड़े और आपका कीमती वक्त हमें दिया। तो आ साथे चर्चा में हाल बस आटलू ज। नमस्कार।